Hello students, welcome to Charu's classes. Today we are going to do exercise 3.2 playing with numbers class 6. Question number 1. What is the sum of any two odd numbers or any two even numbers? So A part, sum of any two odd numbers. किसी भी two odd numbers का sum, what does it come? That is the question. तो लेते हैं, लेट्स टेक 1 and 3, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, इनका सम आ रहा है 4. इफ़ आई टेक 3 and 7, दीज टू आर ऑल्सो ऑड नंबर्स, आई एम गेटिंग 10. इफ़ आई टेक 3 and 5, तो उसका सम आ रहा है 8. तो एज वी कैन सी जो हमारा आंसर है दैट इज़ ऑलवेज कमिंग इवन. सो सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स is even number. B part, sum of any two even numbers. So two even numbers लेते हैं. 2 plus 4 6, 4 plus 6 10, 2 plus 8 10. So as we can see यहाँ पे भी जो हमारा आंसर है it is coming even. तो हम लोग लिख सकते हैं sum of any two even numbers is even. Second question, state whether the following statements are true or false. A statement, the sum of three odd numbers is even. तो हम sum लेते हैं three odd numbers का. Let's take 1, 3 and 5. So 1 plus 3 4, 4 plus 5, हमारा आंसर आ रहा है 9. 9 is an odd number and they are saying that sum of three odd numbers is even. So this is a false statement. B, the sum of two odd numbers and one even number is even. तो first two हम कोई भी odd numbers लेते हैं. Suppose we take 1 and 3 and one even number. एक even number लेते हैं. Let's take 2. तो ये बोल रहे हैं कि सम जो है दैट विल बी इवन. सो 1 plus 3 is 4, 4 plus 2 is 6. तो इस केस में हमारा सम इवन आ रहा है. लेट्स चेक वन मोर. लेट्स टेक 3 plus 7, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं. सो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर. सो 3 plus 7 10, 10 plus 2, यहाँ पे भी 12 इवन नंबर आ रहा है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. C part, the product of three odd numbers is odd. So we have to check कोई भी three odd numbers का product यानी multiplication लेना है. So 1 into 3 into 5, ये आ रहा है 15, ये तो odd आ रहा है. Let's take 3 into 7 into 5. So 3 into 7 21, 21 into 5, that is 105. अगेन ये भी ऑड आ रहा है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप इसमें और नंबर्स भी लेके चेक कर सकते हो. सो सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स, दिस इज कमिंग एज ऑड इज ट्रू. डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द quotient is always odd. So let's take an even number. Let's take 8. They are saying if an even number is divided by 2, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 4. दैट मीन्स quotient is even. बट इस स्टेटमेंट में लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज ऑड. सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं. एक तो 1 एंड देन द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो 2 टेबल्स में आएगा, एक 1 के टेबल में और एक अपने खुद के टेबल में. तो हम उसे प्राइम नंबर्स बोलते हैं. सो प्राइम नंबर्स मोस्टली ऑड होते हैं, लेकिन 2 एक ओनली इवन नंबर है विच इज़ इवन ऑल्सो एंड इट इज़ प्राइम ऑल्सो. सो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. दिस इज फॉल्स. F, prime numbers do not have any factors.
सो दे आर सेइंग कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं. दिस इज़ फॉल्स. मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं. One is 1 and the number itself. So this is false statement. G part, sum of 2 prime numbers is always even. तो हम कोई भी 2 prime numbers लेते हैं. Let's take 2 and 3. ये दोनों prime number हैं. इनका जो sum है that is coming 5 and 5 is odd. तो ये statement false हो गई. Sum of 2 prime numbers is always even. That is a false statement. H. 2 is the only even prime number. Now this statement is true. बाकी के even number composite numbers होते हैं because वो सब 1 और अपने टेबल के अलावा मिनिमम 2 के टेबल में तो आते ही आते हैं. तो 2 is the only even prime number. That is true. I part. All even numbers are composite numbers. तो अभी अभी हमने देखा कि 2 is a prime number. It's not a composite number. So this statement, all even numbers are composite numbers, it is false statement. J part, the product of 2 even numbers is always even. So let's take कोई भी 2 even numbers लेते हैं. 2 into 4, that is 8. इनका product यानी multiplication even number आ रहा है. Let's take 4 and 6, that is 24, again even. We can take 10 into 2, 20, again even. तो आप कोई भी 2 even numbers लोगे तो उसका product even ही आता है. That is a true statement. Question number 3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Prime numbers है means उनके 2 ही factors हैं, एक 1 and the number itself. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. So 13 and 31 एक ऐसा पेयर है जिसमें 2 नंबर 1 and 3 एंड उसका उल्टा करो 3 and 1. So 13 and 31 दोनों ही उसमें prime numbers हैं. We have to look for some other pairs of prime numbers जिनको उल्टा सीधा आप किसी भी फॉर्म में लिखो दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए. तो ये पेयर्स हैं 17 and 71, ये दोनों प्राइम हैं. 37 and 73, ये दोनों प्राइम हैं. 79 and 97. तो ये वो 3 पेयर्स और हैं जो कि 100 से कम है एंड उसमें सेम डिजिट्स हैं एंड दीज आर प्राइम नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 4. Write down separately the prime and composite numbers less than 20. तो हमें prime numbers and composite numbers लिखने हैं. The numbers less than 20. So numbers less than 20 means हम 1 से शुरू करेंगे. 1 जो होता है that is neither prime nor composite, उसे हम unique number बोलते हैं. 2 is a prime number. 3 is a prime number. 4 is composite. 5 is again prime. 6 is composite. 7 prime number है. 8 composite number है because उसके 2 से ज़्यादा factors हैं. 9 भी composite है. 10 भी composite है. 11 prime number है. Then 12 composite number है. 13 prime number है. 14 composite number है. 15 भी composite number है. 16 again is a composite number. 17 उसके 2 ही factors हैं, so it's a prime number. 18 composite number है. 19 again prime number है. And they asked for only numbers less than 20. तो हमें यहाँ पे 20 भी शो करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये numbers prime है and these numbers are composite. Question number 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? So सबसे पहले let's write all the prime numbers between 1 to 10. So these numbers are 2, 3, 5 and 7. तो 1 to 10 के बीच में these 4 prime numbers are there, out of which they are asking greatest prime number. So definitely यहाँ पे greatest number 7 है.
Question number 6. Express the following as the sum of two odd primes. 44. हमें इस नंबर को सम के फॉर्म में लिखना है, बट वो सम होना चाहिए टू ऑड प्राइम नंबर्स का. सो यू कैन टेक 41 एंड 3. ये दोनों ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं. नेक्स्ट इज 36. 36 को हम लिख सकते हैं 31 प्लस 5. सी पार्ट 24. 24 को हम लिख सकते हैं 19 प्लस 5. डी पार्ट 18. 18 को हम लिख सकते हैं 13 प्लस 5. इन नंबर्स को लिखने के लिए और भी वेज हो सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों नंबर ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए. Question number 7. Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. Two prime numbers whose difference is 2 are called the twin primes. ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है उन्हें we call it the twin primes. So we have to give some examples, 3 pairs of twin prime numbers. So इसमें एग्जाम्पल आएंगे 3 and 5. बिकॉज यू नो कि 3 and 5 दोनों प्राइम हैं और उनका डिफरेंस 2 होता है. नेक्स्ट पेयर आप ले सकते हैं 5 and 7. अगेन 7 minus 5 is 2. एंड वन मोर पेयर यू कैन टेक इज 11 and 13. एज 13 and 11 बोथ आर प्राइम और दोनों का डिफरेंस इज 2. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? फर्स्ट 23. 23 जो है इट्स अ प्राइम नंबर. इट ओनली हैज़ 2 फैक्टर्स 1 and 23. इसके और कोई फैक्टर्स नहीं है, ये किसी और टेबल में नहीं आता है. सो 23 इज़ अ प्राइम नंबर. नाउ 51. 51 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 51 के टेबल में आता है, बट इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3 ऑल्सो. 3 17s और 51 होता है. तो इसके फैक्टर्स 1, 3, 17, 51, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 37. 37 अगेन इट्स अ प्राइम नंबर. ये सिर्फ 1 and 37 के टेबल में आता है. नेक्स्ट नंबर इज़ 26. 26 एक इवन नंबर है. सो इवन नंबर 2 को छोड़ के कोई भी प्राइम नहीं होता है. दिस इज़ 2 into 13. एंड प्लस इसके अदर फैक्टर्स आर 1 and 26. सो अगेन इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं. सो दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स जो हैं दे आर 2 ऑफ देम, 23 and 37. क्वेश्चन नंबर 9. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. So 7 consecutive composite numbers. 7 numbers चाहिए जो कि consecutive होने चाहिए. Consecutive का मतलब होता है लगातार, one after the other. Like the numbers 1, 2, 3, 4 ये consecutive numbers हैं. Numbers 7, 8, 9 consecutive numbers हैं. तो उन्हें लगातार वाले numbers चाहिए, but they have to be composite numbers and total 7 एक साथ numbers होने चाहिए. So you can check from the numbers 1 to 100. यहाँ पे 100 से लेस वाले कोई numbers चाहिए. तो अगर आप चेक करेंगे तो you will realize कि 7 consecutive composite numbers एक साथ 100 से कम में सिर्फ एक बार आते हैं, and that is from 90 to 96. ये सब composite numbers है. Composite numbers means ये prime numbers नहीं है. They have more than 2 factors. तो ये नंबर्स हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96. So 90 एक कॉम्पोजिट नंबर है. यू नो 1 में भी आता है, 2 का भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 90 भी है. सेम में 91 7 के टेबल में भी है, 13, 1, 91. ऑल द इवन नंबर्स
एज इट इज़ 2 को छोड़ के सभी के सभी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. 93 जो है दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 3 ऑल्सो, एंड 95 5 के टेबल में भी आता है, 19 के भी टेबल में आता है. तो ये सब जो हैं दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स एंड दे आर 7 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार वाले नंबर्स हैं. सो दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. तो इन नंबर्स को हमें सम के फॉर्म में लिखना है, प्लस के फॉर्म में अगेन, बट यहाँ पे हमें 3 ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स होने चाहिए जिनका सम ये आए. सो 21 वी कैन राइट इट एज 3 + 5 + 13. ये तीनों नंबर ऑड हैं एंड तीनों नंबर प्राइम नंबर्स भी हैं. 31 इसे 3 + 5 + 23 लिख सकते हैं. 53 इसे लिख सकते हैं 13 + 17, ये हो गया 30 एंड 23. 61 वी कैन राइट एज 7 + 13, ये हो गया 20 + 41. क्वेश्चन नंबर 11. राइट 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. सो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए, ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होने चाहिए. मीन्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो नंबर प्राइम नंबर्स हों, 20 से छोटे हों और उनका सम जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. तो जो सम 5 से डिविजिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? द नंबर 5, 10, 15, 20, 25, 30. अगर हमारे 20 से कम वाले प्राइम नंबर्स ऐसे हैं कोई दो जिनको ऐड करके मुझे 5, 10, 15, 20 इस टाइप के नंबर्स मिले तो देन दोज विल बी द आंसर. सो लाइक आई कैन टेक 2 and 3. ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेस देन 20 हैं, इनका सम 5 है एंड 5 इज़ डिविजिबल बाय 5. आई कैन टेक 2 + 13, इसका सम 15 है एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 5. आई कैन टेक, यहाँ पे हिंट में 3 + 7 = 10 गिवन है, सो लेट्स लीव इट. और कुछ ले लेते हैं. लेट्स टेक 3 + 17, तो ये सम 20 आता है एंड दिस इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 3 and 17 दोनों प्राइम नंबर हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जस्ट इसका सम 5, 10, 15 नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना कि दोनों नंबर्स प्राइम हों. देन वी कैन टेक 7 + 13, द सम इज़ 20 और ये 5 से डिविजिबल है. 19 + 11 दैट इज़ 30 एंड अगेन 30 इज़ डिविजिबल बाय 5. So these are the pairs of prime numbers. Question number 12. Fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called a prime number. B part, a number which has more than 2 factors is called that is a composite number. जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो देन दैट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. 1 इज़ नाइदर डैश नॉर डैश. तो हमें पता है कि 1 को वी कॉल इट अ नाइदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट नंबर. इसे हम एक यूनिक नंबर बोलते हैं बिकॉज इट्स नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, so सबसे छोटा प्राइम नंबर, a number which has only 2 factors, 1 and the number itself, the smallest prime number is 2. The smallest composite number वो है जिसके 2 से ज़्यादा factors होते हैं. So 2 is prime, 3 is prime, 4 is the first composite number. The smallest even number is, so smallest even numbers 2, 4, 6, 8, 10. So smallest even number as you know is 2. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.